Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I am your very own Aliza Naqvi, and today the guest we have very interesting. Now, he teaches A-level physics and has been associated with various renowned institutes of A-levels. He has been teaching for 2 decades now, which is quite a big amount of time. So let's get to know him and his journey. If we talk about qualifications, he is an NED graduate and a master's in applied physics as well. And he's currently pursuing something as well, so a student at the same time. A very warm welcome to Mr. Kamar Hussain. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you doing, sir? I'm good. How are you? Thank you. I'm good too, alhamdulillah. How are things going these days? How is life? Nowadays, getting relaxed because अभी all colleges तमाम जगहों पर जो है वो midterms हो रहे हैं, तो थोड़ा सा सुकून का सांस है and spending time with quality time with family. So, what do you do when sessions are off and just to regain your interest and just to get that stress off a little? What habits do you have? Uh, मतलब basically to recharge myself, what I do कि whatever I do in my vacations, I don't do anything related to my work. Okay. Simple formula. आपकी छुट्टियां हैं, आप जो जी चाहे करें, आप घर पे पढ़ के सोएं, किताब पढ़ें, नेटफ्लिक्स देखें, बच्चों के साथ खेलें, whatever you do, but don't do anything related to your work. Even if I get a call from my office, so normally I avoid that call until के बहुत necessary now. So मेरे ख्याल से सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि आपको जो भी आपको स्पेयर टाइम मिलता है, उसमें आप चाहे कुछ भी करें, बस काम ना करें. इससे फायदा होता है कि when you get back to your work, so you are fully recharged and you are more interested in your work. And a change of routine is very important. Of course, बिल्कुल. All right, coming towards your journey, I am really interested in the fact that you chose physics particularly to teach because it is considered as a challenging subject and students do have a hard time understanding it. So, what was your perspective of becoming a teacher first and then opting for physics? Actually, अगर मैं फिजिक्स के हवाले से बात करूँ तो आई थिंक कि इनिशियली और यू कैन से कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट I was more interested in mathematics. Okay. And frankly speaking, I started my career as a teacher who used to teach add maths and physics both. Okay. So for initial 3 years of my career, I taught both the subjects, add maths and physics. But after that duration of time, I had to decide कि इनमें से कौन सा मुझे आगे जा रहा है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो आप एक ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं. So at that time, I realized कि I should have chosen physics, so I decided about physics. And this was always at the back of your mind that you want to become a teacher? Frankly speaking, nahi. Okay. Because when I got admission in NED, so obviously मेरी जो ambitions थी, जो सारे मेरे dreams सब वो about being an engineer थे. But as the life goes on, तो उसमें मैंने ये realize किया कि उस वक्त मेरा डिसीजन ये था कि टीचिंग मेरे लिए ज़्यादा बेहतर जो है प्रोफेशन है. बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व इवन बिफोर आई गॉट एडमिटेड इन यूनिवर्सिटी. एट द टाइम ऑफ कॉलेज आई वॉज टीचिंग, आई वॉज गिविंग ट्यूशंस. सो आई वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन नॉर्मली जो कराची के 90% टीचर जो करते थे, मैं भी वही करता था. बिल्कुल, मेरे सबकी जर्नी में ये तो ऑलमोस्ट मैं इवन मेरे जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, इवन आप किसी से भी सुन रहे तो ऑलमोस्ट 90% लोग ये कहते हैं कि जब हम खुद ए लेवल्स कर रहे थे, हम खुद इंटर कर रहे थे, तो हम ट्यूशंस पढ़ाते थे, फिर यूनिवर्सिटी में भी हमने पढ़ाया. तो बस ये मेरा भी मोर और लेस यही जर्नी है. सो आफ्टर यूनिवर्सिटी मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक दिस प्रोफेशन अट्रैक्ट्स मी मोर, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू टीचिंग. So what is that one thing that has kept your passion alive? Because 2 decades is a huge amount of period. And does it ever get boring for you? What do you do? I don't have a general formula for all the teachers. I'm not sure कि वो क्या करते होंगे. लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि मेरा जो इंटरेस्ट जो अलाइव रहता है, उसके लिए मेरे पास एक वर्ड है और वो वर्ड है क्यूरियोसिटी. मेरा जो सब्जेक्ट है ना, उसमें क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर नॉट क्यूरियस अबाउट एनीथिंग, सो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न फिजिक्स एवर. अगर आपके अंदर कोई, अगर आप में ये क्यूरियोसिटी नहीं है कि ये जो है, ये मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा है, ये मैंने माइक लगाया हुआ है, ये माइक किस तरह काम करता है, ये बगैर वायर के मेरी आवाज़ वहाँ पे कैसे जा रही है, या जो दिन कैसे हो रहा है, रात कैसे हो रहा है, मतलब देयर आर सो मेनी फिनोमिना, मतलब अनकाउंटेबल फिनोमिना. तो एटलीस्ट कोई 1-2 फिनोमिना तो होता होगा ना जो कभी आपको हिट करता होगा.
सो मुझे ज़्यादा फिनोमेना हिट करते हैं, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड। और मैं अपने स्टूडेंट में भी बेसिकली जो है फिजिक्स उनको बाद में बताता हूँ, पहले उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता हूँ। पहले हम उनको स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो इवन ये कि मैं इवन होता है जैसे मैं किसी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा होता हूँ, किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होता हूँ, तो दे आर मैनी इंस्टीट्यूट वेयर वी यूज एलिवेटर्स, वेयर वी यूज लिफ्ट। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं क्लास खत्म करके जा रहा था, मेरे साथ कोई मेरी क्लास के एक दो बच्चे आ गए मेरे साथ लिफ्ट में जा रहे हैं, तो मैं उनसे ऐसे कभी कभार तो ऐसी कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे मैंने एक दफ़ा मजाक में पूछ लिया कि डू पीपल नो कि दुनिया से पता था कौन सी सवारी इस्तेमाल होती है, तो सब अपने गैसेज बता रहे हैं, कोई सारा ट्रेन, कोई कह रहा है सर ये प्लेन। मैंने कहा नहीं बेवकूफ़, दुनिया से पता जो सवारी इस्तेमाल होती है वो लिफ्ट है। तो अच्छा ये तो एक जोक हो गया। इस तरह मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम अभी लिफ्ट में नीचे जा रहे हो, तो आर यू फीलिंग हैवियर और लाइटर, और व्हेन यू कम अप यूजिंग लिफ्ट, सो व्हेन यू ट्रैवल अप, सो हाउ डू यू फील। तो रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग इसको फील करते हैं, जवाब भी देते हैं, तो मुझे एक बहाना मिल जाता है एक्सप्लेन करने का कि लिफ्ट में जब ऊपर नीचे आप मूव कर रहे होते हैं तो आपको वेरिएशन क्यों फील होती है अपने वेट में। इट इज अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स। सो देयर आर सो मेनी फिनोमेना, इवन ये कि इवन इफ यू आर ब्रीदिंग, और आप सांस ले रहे हैं ना, उसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। सो यू कैन एंगेज स्टूडेंट वेरी इजीली। बाकी सब्जेक्ट्स को मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन फिजिक्स में तो मुझे पता है कि इवन है कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, मैं आपको 10 चीज़ें भी गिनवा सकता हूँ जिसमें मैं आपको एंगेज कर सकता हूँ फिजिक्स के बारे में। अब 10 में से कोई एक चीज़ तो जो होगी ना, जो आपको अपील करेगी, जो आपको स्पार्क पैदा करेगी क्यूरियोसिटी का। सो ऑल्दो इट्स नॉट ईजी, बिकॉज जब आप क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो फिर आपको बच्चों को जवाब भी देना होता है। अब आपने बच्चे से ये तो पूछ लिया कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका वेट आपको ज़्यादा क्यों फील हो रहा है, तो बच्चे ने अगर पूछा सर बताएं, मुझे एक्सप्लेन करें, तो आपको एक्सप्लेन भी तो करना है ना उसको। सो आई एम नॉट सेइंग ये बहुत आसान काम है, लेकिन स्ट्रैटेजी ये होती है। एंड द वे यू स्पीक अबाउट इट, उससे ये आइडिया होता है कि हाउ पैशनेटली यू एग्जैक्टली, टीच एंड बिल्कुल, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली, लाइक बिल्कुल। you can just sit here and आप 10 चीजें गिनवा सकते हैं, you haven't been in this environment before, but it just shows that how big of an impact physics has in your life. मेरे ख्याल में हर हर इंसान का कोई ना कोई पैशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी फिजिस्ट हो, हर आदमी जो है बायोलॉजिस्ट हो। इवन ये कि मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी जानता हूँ कि एक एक दफ़ा मैं क्लास में बैठा हुआ था, तो पता नहीं किसी एक टॉपिक, बड़े अजीब टॉपिक पे बात होने लगी, तो एक जो मेरा स्टूडेंट था वो बड़ा बहुत ही पैशनेट तरीके से उसके बारे में बात कर रहा था। तो हम पूरी क्लास को अंदाज़ा हो गया कि ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक। सो एवरीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, वो हमेशा उसके बारे में पैशनेट ही होता है। उसके बात करने से पता चल जाता है कि ये कितना जो है वो जो है कितना इन्वॉल्व होके बात कर रहा है, उससे ज़्यादा हो जाता है। Definitely. All right, so with the growing age of AI, where do you see the physics future? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए बेसिकली मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, और बहुत ज़्यादा टाइम होने का एक मतलब ये भी है कि एज भी ज़ाहिर है मेरी बहुत ज़्यादा हो गई होगी। पर ऑल्दो आई, लगती नहीं हाँ, है। ऑफ कोर्स आई नो, ऑल्दो आई लुक यंग बट डेफिनेटली आई एम नॉट यंग एनीमोर। सो 1980s में आप कह सकते हैं, आई वाज बोर्न इन 1979। तो 1980s से समझ लें कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया, स्कूल जाना शुरू किया, तो इट वाज यू कैन से 85 86 से। तो आप लोगों को शायद पता हो, आप में से बहुत सारे लोग पता होगा, 1985 में जो है एक अंग्रेजी फिल्म आई थी बैक टू द फ्यूचर, और उसके बहुत सारे वर्जन्स भी हैं, बैक टू द फ्यूचर 2 भी है, 3 भी है। सो मैं खैर जब वो आई थी, सब तो मैं बहुत छोटा था, सब तो मुझे फिल्म समझ में नहीं आती थी। वो फिल्म 90s में देखी होगी मैंने। तो अगर आप वो फिल्म देखें तो उस फिल्म में आपको उन्होंने 2014-15 दिखाया, क्योंकि आज से 8-9 साल पहले था। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि 2015 में जो है वो कारें उड़ रही होंगी, और लोग जो है वो ऊपर उड़ते हुए जा रहे होंगे, और जो है मतलब एक बड़े अजीब-गरीब सा सिनेरियो दिखाया है। लेकिन अगर आप उस फिल्म में देखें तो जो 2015 में कहीं पे भी स्मार्टफ़ोन का ज़िक्र नहीं है, कहीं पे भी इंटरनेट का ज़िक्र नहीं है, कहीं पे भी यूट्यूब का ज़िक्र नहीं है, कहीं पर भी जो है वो आपके फेसबुक का ज़िक्र नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि देखें, फ्यूचर इज़ ऑलवेज़ अनप्रेडिक्टेबल। अगर यहाँ पे आइंस्टाइन को भी बिठा दें ना, आप स्टीफन हॉकिंग को भी बिठा दें, तो उनमें से कोई एग्जैक्टली बता सकता है कि आज से 20 साल बाद क्या होगा। वी कैन जस्ट प्रोजेक्ट, हम सिर्फ जो है ना एक प्रोजेक्ट ही बना सकते हैं कि देखो ये इवेंट्स हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका अल्टीमेटली जो है रिजल्ट ये निकले, बट नोबडी कैन बी 100% श्योर कि आज से 20 साल बाद क्या होगा। और एआई के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो एआई के क्रिएटर्स हैं, उनको खुद एआई के बारे में कंफर्म नहीं पता कि हाउ डज इट वर्क। अगर आप भी आप इंटरनेट पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, आप जो है जो गूगल का सीईओ है उसके क्लिप्स निकाल के देखें, आप इवन जो बड़े बड़े एआई के जो क्रिएटर्स हैं उनके क्लिप्स निकाल के देखें, तो फ्रेंकली स्पीकिंग उन्होंने खुद एडमिट किया है कि वी 100% डू नॉट नो कि हाउ डज इट वर्क। उसका जो न्यूरल नेटवर्क है कैसे काम करता है, वो आपस में जो है वो इंटरेक्ट किस तरह करती हैं आइज।
सो फ्रैंकली स्पीकिंग हमें नहीं पता कि इसका एग्जैक्टली क्या फ्यूचर है। हम्म, बट राइट नाउ एक बात जो है जो मुझे समझ में आई है, शायद मैंने कहीं पढ़ी होगी या किसी से सुनी होगी, मैं खुद तो इतना बड़ा थिंकर नहीं हूँ, वो मुझे समझ में आई है कि फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग एआई का फ्यूचर ये है कि आई डोंट थिंक in near future AI is going to replace human being, but those who apply AI in their work will replace those people who do not apply AI in their work. and that brings me to my next question. Do you apply AI in your work? Definitely, definitely. फॉर एग्जाम्पल देखें, एआई का मतलब आप एआई का नाम सुनते ही एक नॉर्मली एक जो कॉमन बंदा है वो बहुत ही हाईटेक फिल्मों जो आपकी साइंस फिक्शन फिल्में होती है ना उनमें चला जाता है कि एआई का मतलब ये है कि रोबोट्स घूम रहे हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं, हो रहा है। लेमैन लैंग्वेज मतलब यही इट्स है। एआई, नो नो डाउट इट्स एआई, बट ये हम्म, इतना एकदम एब्रप्टली नहीं होता, चेंज हम्म, ग्रेजुअली आता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपको ये अभी सबसे कॉमन मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अभी मैं आज से जब 25 साल पहले जब मैं खुद पढ़ता था, तो अगर मैं अपने टीचर से पूछता था कि सर ये बताएं कि सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है वो कितनी देर का होता है, तो या तो उनको पता होता था मुझे बताते थे, या फिर वो कोई किताब खोलते थे फिजिक्स की, उसको मुझे रेफरेंस देते थे कि तुम फला राइटर की फला किताब खोल के पढ़ो, उसमें सारा डाटा लिखा हुआ होगा। राइट नाउ मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ ये मोबाइल उठाऊँगा और बोलूँगा जेमिनी होगा, या वो जो मेरे पास खैर महंगा फ़ोन तो नहीं है, वो जो एप्पल में सीरी। होती है सीरी होता है, या ओके गूगल बोलूँगा, वो बोलेगा हम्म, सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं कहूँगा बताओ कि भाई सैटेलाइट का ऑर्बिट कितना होता है, मुझे विद इन अ सेकंड बता देगा। तो दिस इज एआई। तो ये ग्रेजुअली हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल हम्म, मिसाल के तौर पर मैं आज से 10 साल पहले जब पढ़ाता था या 10-15 साल पहले पढ़ाता था, तो मेरे जो जो टीचिंग मेथडोलॉजीज थी, जो टीचिंग एड होती थी, उसमें उस वक्त भी विजुअल एड होती थी, उस वक्त उसमें भी जो है वो आपकी और एड होती थी। लेकिन आज जो है आप अगर फ़र्ज़ करें आईपैड यूज़ कर रहे हैं, या आज अगर आप जो है वो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई और इस तरह की जो है वो टेक्निकल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू। अब आप हम्म, इमेजिन करें कि एक टीचर जो है वो इंटरनेट यूज़ किए बगैर, वो आईपैड यूज़ किए बगैर, वो एक प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज़ किए बगैर अगर बोर्ड पे खड़े होकर चॉक से या मार्कर से पढ़ाएगा, तो मुझे उस टीचर की कॉम्पिटेंस पे कोई शक नहीं है। हम्म, डेफिनेटली वो एक नॉर्मल टीचर से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा, बट आई थिंक कि उसको एक डिसएडवांटेज होगा। एक टीचर जो हम्म, कि टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उसको बाहर एज तो मिलेगा, उसको हम्म, एज तो बाहर मिलेगा। मैं एक टीचर हूँ, मैं बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाता हूँ, मैं चाहे जितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, अगर मेरे बच्चे की वो क्लास मिस हो गई या बच्चे को चीज़ समझ में नहीं आई, तो अब उसका उसका जो उसका उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि बच्चा जो है वो पीछे रह गया। अब या तो मैं उसको दोबारा रिवाइज़ कराऊँ, या हम्म, वो फिर किसी अपने दोस्त से हेल्प ले। लेकिन अगर वही टीचर जो मिसाल के तौर पे उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा है यूजिंग टेक्नोलॉजी, और उस टीचर का एक यूट्यूब चैनल है, इवन एक यूट्यूब चैनल ना भी हो, उस टीचर के पास अपनी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, वो अपने बच्चों को कहता है चलो बेटा तुम क्लास नहीं ले पाए थे, बट यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट क्लास। सो डेफिनेटली इट इज एन एडवांटेज। it और यही हम is. ग्रेजुअली एआई को यूज़ करके हम आगे जा रहे हैं। हम्म, एआई को यूज़ करने का मतलब ये थोड़ी है कि कल को जो है मैं आऊँगा, मैं जो है वो आयरन मैन की तरह कपड़े पहना हुआ आऊँगा और मैं कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर यूँ करूँगा। हम्म, मतलब इतनी एब्रैप्टली सब कुछ नहीं होता, ये ग्रेजुअली होता है। तो ग्रेजुअली हम इसी तरफ जा रहे हैं। होगा हम्म, क्या कि वो लोग जो कि इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो ज़्यादा पीछे रह जाएँगे, और जो हम्म, चेंजेस को अडॉप्ट करते रहेंगे, वो ज़्यादा आगे चले जाएँगे। हम्म, बट अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि 20 साल बाद क्या एआई टेक ओवर कर लेगी, या 20 साल बाद जो साइंस फिक्शन की तरह हम सब लोग स्लेव बन जाएंगे कंप्यूटर्स के, तो मेरे ख्याल से मैं इतनी मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इसको प्रेडिक्ट कर सकूं। आई थिंक नोबडी कैन प्रेडिक्ट। हम्म. All right, going a little off topic. You mentioned, I think, two movies in this podcast. So, would you like to share which recent movie you've watched? And आपकी बातों से मुझे ये idea हो रहा है that you're very up to date. You know Netflix, you know Iron Man, and you know the current thing going on, the it things. देखिए, So, ये इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि मैं एक तो बंदे का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो डेफिनेटली आई हैव इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स। सेकेंडली ये मेरी ज़रूरत भी है मेरे प्रोफेशन की। देखिए, मैं जो है आज से 25 साल पहले मेरी उम्र कुछ और थी, आज मेरी उम्र कुछ और है, 25 साल बाद मेरी उम्र कुछ और होगी अगर मैं ज़िंदा रहा 25 साल तक। तो inshallah. नोबडी नोज़। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि आज से 20 साल पहले मैं जिनको पढ़ाता था उनकी एज उस वक़्त भी 18-19 साल होती थी। आज भी जिनको पढ़ाता हूँ आज भी उनकी उम्र 18-19 से 20 साल होती है। 25 साल बाद भी अगर मैं पढ़ा रहा हुआ जिसको पढ़ा रहा हूँ जब भी उम्र 18-19 साल ही होगी। सो Definitely. मुझे 18-19 साल के लड़के-लड़कियों को कैटर करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस यंग एज में जो है चल क्या रहा है। इस यंग एज में चल क्या रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है क्लास में कोई बात कर रहा हूँ और मुझे कोई सामने से कुछ कोई बच्चा कहता है और मैं सार्कास्टिकली कुछ उसको ऐसे या जोक में कुछ जवाब देता हूँ,
तो अगर उसको मैं मेहदी हसन की एग्जांपल दूंगा या उसको अगर मैं दिलीप कुमार की एग्जांपल दूंगा तो पहले तो बच्चा मुझसे पूछेगा सर हू द हेल इज दिलीप कुमार, ठीक है ना, या सर ये मेहदी हसन कौन है। लेकिन जब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई, तो मैं मिसाल के तौर पे जो है, एक लड़का मुझसे एक दफ़ा क्लास में कहने लगा, सर वो मैंने आपका घर देख लिया, आप कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैं को टेलर स्विफ्ट हुई तो मेरा घर देख लिया, तो मेरे घर पे जो फोटोग्राफर्स आ जाएंगे। तो बिकॉज आई वॉज अपडेटेड, मुझे पता था टेलर स्विफ्ट कौन है, दैट इज वाई गिव द एग्जाम्पल ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेलर स्विफ्ट लेकिन आई शुड नो अबाउट हर कि भाई चल क्या रहा है, बच्चे किसको पसंद करते हैं, क्या होता है वगैरह वगैरह। Definitely. All right, so you are currently a student as well. So, what do you think are some similarities between you being a student in this age and then the students that you teach of this generation? जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी मुझे नज़र आती है, इवन है कि आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था और आज मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक सिमिलैरिटी तो मुझे नज़र आती है, शायद इसकी वजह हमारा हमारा कल्चर है, और वो ये कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग जिस तरह से अपने टीचर को रिस्पेक्ट करते थे, आज भी बच्चा टीचर को वैसे ही रिस्पेक्ट करता है। थोड़ा सा मतलब बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आया हुआ, हम इतने फ्रेंड नहीं होते थे अपने टीचर के साथ, आज के बच्चे ज़्यादा फ्रेंड हैं, बट लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहीं का वहीं है। मतलब आई नोटिस इट ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस कि जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों के साथ जब आप होते हैं, तो बच्चे जब आपको जिस तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरह आपकी बात सुनते हैं या जिस तरह आपकी बात मानते हैं, इसमें ज़्यादा टीचर का अपना भी रोल होता है, रिस्पेक्ट आदमी खुद करवाता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जिस तरह बच्चे टीचर की बात को लेते हैं और जिस तरह उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ये एलिमेंट मुझे जो है बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे आज से 25-30 साल पहले लगता है। जिस तरह हम अपनी टीचर को इंपॉर्टेंस देते थे, उनकी बात सुनते थे, आज का बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल्दो हमारी सोसाइटी बहुत डैमेज हो चुका है सोसाइटी में, बट बावजूद उसके अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सोसाइटी में ये एलिमेंट बाकी है कि टीचर अभी तक जो है, अभी तक स्टूडेंट जो टीचर को रिस्पेक्ट देता है, और दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। And what about one difference? डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है, और मेरे ख्याल से पॉजिटिव वे में है। Okay. और वो डिफरेंस ये है कि बच्चा अब जो है ना क्वेश्चन करता है, Okay. और ज़्यादा क्वेश्चन करता है, और ये एक अच्छी बात है। इसकी वजह से ही टीचर को जो है अप टू डेट रहना पड़ता है, इसी वजह से टीचर को जो है वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो ऑन हिज टोज रहना पड़ता है। उसकी वजह क्या है, वजह है कि मिसाल के तौर पर आज से 25 साल पहले अगर आपका टीचर बोलते कि भाई ये ए है और ये बी है, तो नॉर्मली बच्चे क्वेश्चन नहीं करते थे। वो 100 में से कोई एक आइंस्टाइन होता था, बोलता था कि सर ये वीक में मुझे बताएं, बट नॉर्मली बच्चे कहते सर कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। आज तो आप कोई इधर से इधर या इधर उधर बात नहीं कर सकते। आप ज़रा से कोई फिगर गलत बता दें, आप थोड़ा सा कोई फैक्ट गलत बता दें, तो बच्चा फ़ौरन क्वेश्चन करता है। उसकी वजह है कि बच्चा अवेयर बहुत है, बच्चे की जो है वो टिप्स पर है सब कुछ, मतलब बच्चे को नहीं पता होगा उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो आज आप जो है ना वो कुछ ज़रा सा इधर उधर नहीं कर सकते। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे थे, तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है, मैकेनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, सॉलिड मैकेनिक्स हम उसको कहते थे। तो हमारे टीचर ने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सिखाया था, एक ऐसी चीज़ का जो कि कॉम्पोजिट मटेरियल से बना हुआ, मोर देन वन मटेरियल से बना हुआ। तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो उन्होंने पॉइंट बताए थे, तो मैंने घर जाके चेक किया, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये पॉइंट्स तो गलत आ रहे हैं, इसको सेंटर में आना चाहिए, वो सेंटर में आने से मना कर रहे थे। तो मैंने अगले दिन जाके उनको बोला कि सर आप तो कहते हैं कि सेंटर पे नहीं आएगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन तो सेंटर पे आ रहा है ये। तो उन्होंने देखा, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने गलत बताया था। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, सही है, आप सही कह रहे होगे, लेकिन उन्होंने क्लास में आके उसको करेक्ट नहीं किया। आज आप ऐसा नहीं कर सकते। आज तो आप ज़रा सा इधर उधर करें, और बच्चा आपको बेशक आपको कुछ भी ना बोले, वो तो अगले दिन सोशल मीडिया पे आ जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउअडेज। And that is a good thing as well. I mean, नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, वो तो मैंने शुरू में कहा ना कि आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ती है ना, इससे आप अपडेट रहते हो, अब आप ज़्यादा आपको जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सो अब आप जो है वो बच्चों को घुमा नहीं सकते। that is true. Sir, any success story? कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी ऐसी accomplishment हो that has left you proud and you still remember it to date? बहुत हैं, मतलब मैं कोई एक आध को पर्टिकुलरली तो नहीं है, मैं तो समझ लिया तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल जो है कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है। एक सबसे पहला इवेंट जो मेरी लाइफ में हुआ था, जिसको मैं आज तक याद रखता हूँ, व्हेन आई वाज वेरी यंग, और ऑलमोस्ट मुझे 5-6 साल पढ़ाते हुए थे। तो मेरा एक स्टूडेंट था, मैं उसका ड्यू टू सम रीजंस नाम नहीं ले सकता। उसके साथ इशू ये था कि ही वाज इन ओ लेवल्स विद मी, आई वाज टीचिंग हिम ओ लेवल फिजिक्स। तो उसके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई इस वक्त। सो ही वाज वेरी बैडली अफेक्टेड। ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात होती है पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाना। सो सिंगल पेरेंट फिर वो हो गया ज़ाहिर है उसके, तो वो बहुत डिप्रेशन में होता था वो लड़का। तो एक दिन पता नहीं कि मैं लाइब्रेरी में बैठा था, उसने मुझसे
बट डिस्कस करना शुरू कर दिया। हालांकि ज़ाहिर है किसी के पर्सनल मैटर आप डायरेक्टली डिस्कस नहीं करते, बट उसको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रही होगी, तो उसने कहा ये ज़रा थोड़े फ्रैंक हैं सर, मैं यंग भी था उस ज़माने में, बाकी टीचर ज़रा ज़्यादा उम्र के थे तो बच्चे ज़्यादा इतने क्लोज नहीं होते, यंग टीचर ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो उसने मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने उससे बस एक बात कही, मैंने कहा यार देखो मैं इतना एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, मैं तो खुद अभी मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं तो इतना एक्सपीरियंस पेरेंट भी नहीं हूँ अभी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टिप्स दे सकूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो भी एंगर है, जो भी डिप्रेशन है, तुम उसको चैनलाइज करो, उसको चैनलाइज करो कि तुम अपना जो तुम्हारे जो जो लैकिंग्स हैं लाइफ में, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, तुम उनको फोकस करो किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ, अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ। तो उसने मुझे उसी वक्त कहा कि सर आप सही कह रहे हैं, मैं अपनी सारी जो ये सारा एंगर है, जो सारा जो मेरा जो डिप्रेशन है, जो भी मेरी जो ये लैकिंग्स हैं, इन सबको मैं फोकस करता हूँ अपनी पढ़ाई की तरफ। एंड बिलीव मी, ही गॉट 2 distinctions in A-levels, Wow. in physics and chemistry, both, Wow. 2 subjects distinction। तो जाहिर है कि उसने फोकस किया, इस वजह से हुआ। इस तरह की और भी सक्सेस स्टोरीज हैं बहुत सारी। अब बहुत सारे फ्लेक्स नहीं कर रहे, पर बहुत सारे। ऑफ कोर्स नहीं, ये मेरे, माशाल्लाह। हाँ, लेकिन इसमें मैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो इसलिए सक्सेस स्टोरी है। स्टूडेंट्स का अपना जो है, जी जी, ज़ाहिर है अपनी डेफिनेटली। उनका अपना इनपुट होता है। टीचर देखें, टीचर जो है ना, बेसिकली टीचर जो है ना, टीचर के लिए सबसे अच्छा लफ्ज़ जो मेरे ज़हन में आता है ना, हम्म। वो आता है फैसिलिटेटर। अगर एक टीचर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, जितनी भी आप एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब अ टीचर, तो मेरे ख्याल में सबसे अप्रोप्रिएट जो एडजेक्टिव होता है ना, वो फैसिलिटेटर होता है। टीचर का काम होता है फैसिलिटेट करना। टीचर आपको चाय बनाना नहीं सिखाएगा, सिर्फ वो खड़े होकर देखेगा, आपको कहेगा देखो ये करना होता है, ये करना होता है, चाय आपको खुद बनानी है। टीचर आपको लिखना, जो टीचर आपको खुद हाथ पकड़ के लिखना सिखाएगा, तो वो टीचर थोड़ी हुआ, तो वो ट्रेनर हुआ, वो तो कोच हुआ, वो तो ट्यूटर हुआ। टीचर का काम ये है कि आपको खुद हाथ पकड़ के लिखना नहीं सिखाए, आपको फैसिलिटेट करे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि टीचर का काम जो है बच्चों को साइंस पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम जो है बच्चों के अंदर जो है साइंस पढ़ने का इंटरेस्ट जो है ना, वो इग्नाइट करना है। अगर टीचर आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकता है ना, तो पढ़ा आप खुद ही लोगे। तो टीचर का काम फैसिलिटेट करना है। Very well said, and I completely agree to that. And considering the subject that you have chosen, कुछ ऐसी misconceptions हैं जो आप something that you come across कि बच्चों की misconceptions हो कि physics तो बिल्कुल ही बहुत difficult है। मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब कोई सेक्शन ऐसा नहीं होता, मैं जितने भी सेक्शंस पढ़ाता हूँ सुबह से लेकर रात तक, या जितने भी सेशंस मैंने आज तक पढ़ाए, कोई एक सिंगल सेक्शन ऐसा मैंने नहीं पढ़ा जिसमें कोई बायो का स्टूडेंट मेरे पास ना आया हो, एटलीस्ट वन, कि सर मुझे तो डॉक्टर बनना है सर, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ फिजिक्स। असल में हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा इशू है, इवन है कि मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा जो इशू है वो क्लैरिटी का इशू है। हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। इवन आप बच्चों को तो छोड़े, बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा 20 साल का 22 साल का करियर हो गया है। इवन आई एम नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट माई गोल्स, आई डोंट हैव अ क्लियर विजन। सो मोर देन 90% जो हमारे यहाँ लोग करियर में आते हैं या किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर गोल्स, दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर लाइफ, कि उनको करना क्या है। मेरा एक दोस्त है, मैनचेस्टर में होता है, इज डॉक्टर। तो एकदम हमारी बात हो रही थी कि आगे क्या करना चाहिए, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा यार मैं जब भी अपनी लाइफ प्लान करता हूँ ना, तो मैं स्टार्ट इस बात से करता हूँ कि व्हेन आई विल बी 70 ईयर्स ओल्ड, तो मैं उस वक्त क्या कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में हूँगा, मैं यूके में हूँगा, मैं रिटायर्ड हूँगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँगा, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे या कहीं और रह रहे होंगे। तो जब मैं स्टार्ट एंड से करूँगा ना, तो मैं बैकवर्ड प्लानिंग करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्लान ये है कि मुझे अपनी रिटायरमेंट यूके में गुजारनी है, तो फिर मैं पूरा प्लान उस हिसाब से करूँगा। अगर मेरा प्लान है कि नहीं है मैं अभी तो यहाँ काम कर रहा हूँ यूके में, लेकिन रिटायरमेंट में अपने अपने मुल्क में आगे गुजारूंगा, तो फिर मेरी प्लानिंग उसके हिसाब से होगी। सो होता क्या है कि हमारे यहाँ भी ना बच्चों के भी गोल क्लियर नहीं होते। बच्चों को तो पता होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता है कि आप देखें, एक तो ये आप यहाँ भी मौजूद हैं टुडे द प्रेजेंट डे, एक ही आपका गोल है कि मुझे ये जो आज से 5 साल बाद या आज से 8 साल बाद आई विल बी एमबीबीएस, या आई विल बी अ न्यूरोसर्जन, आई विल बी अ हार्ट स्पेशलिस्ट। अब उस ये दो बातें तो उसको पता होती हैं, उसको ये नहीं पता होता है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो स्टेप्स हैं वो क्या है। अब उसको किसी ने ये नहीं बताया होता कि तुम जब डॉक्टर बनोगे तो तुम एक्सरे करोगे, जब तुम अल्ट्रासाउंड करोगे, तुम सिटी स्कैन करोगे, जब तुम एमआरआई करोगे, जब तुम किसी को दवा लिख के दोगे, जब तुम मेडिसिन पढ़ोगे, तो उन सब चीज़ों में तुम्हें केमिस्ट्री चाहिए होगी, फिजिक्स चाहिए होगी। अगर आपको ये नहीं पता फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, अगर आपको नहीं पता करंट क्या होता है, सो हाउ यू गोइंग टू बी अ डॉक्टर। डेफिनेटली। रिसेंटली मैं अभी मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो मेरा एक टेस्ट हुआ यहाँ पर खान में,
तो उस टेस्ट को हम कहते हैं EMG। ओके। ठीक है, वो बेसिकली न्यूरो सर्जरी की एक टर्म है, मुझे एग्जैक्टली मैं भूल भी गया क्या होता है इसका मतलब। मेरे ख्याल में इसका मतलब शायद इलेक्ट्रोमायोग्राफी करके कुछ होता है इसका, Okay. EMG। सो जब मैं वो टेस्ट कराने गया तो इट वाज ऑल अबाउट फिजिक्स। उसमें तो उन्होंने आपको तो इलेक्ट्रिक सब शॉक, समझ आ रहा हाँ बिल्कुल होगा। मैंने उसको बताया, बल्कि मैं तो उससे पूछ भी रहा था, आप कभी जो है वो एको कराने चले जाएं, हार्ट इशू होता है आपका, एको होता है, तो एको क्या होता है, सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है। हम्म। तो विदाउट फिजिक्स आप ये सब टेक्निकल चीज़ें कैसे समझ सकते हैं। एक डॉक्टर को आप कोई इक्विपमेंट ना दें, आप ना उसके पास स्टेथोस्कोप है, ना उसके पास थर्मोमीटर है, ना उसके पास जो है कोई इलेक्ट्रिक टॉर्च है, ना उसके पास जो है कोई एक्सरे मशीन है, सो हाउ इज गोइंग टू ट्रीट यू। अब आप अगर एक्सरे मशीन यूज़ कर रहे हो, अगर आप सिटी स्कैन करते हो, अगर आप MRI करते हो, तो आपको उसकी फिजिक्स आनी चाहिए ना। तो इसलिए फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन स्पेशली बायो के स्टूडेंट्स में। दूसरा ये कि हमने एक चीज़ और समझी हुई है कि साइंस के सब्जेक्ट सिर्फ वो बच्चा पढ़ता है जिसको साइंस ही पढ़नी होती है। ओके। मिसाल तौर पे आई वांट टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट। सही, अच्छी बात है, आप चार्टेड अकाउंट बनना चाहते हैं तो आपको शुरू से आपको अकाउंट्स पढ़ना चाहिए, आपको बिजनेस पढ़ना चाहिए। लेकिन इवन एक अगर लोअर लेवल पर, जैसे कि O लेवल्स में भी अगर आप एक आध सब्जेक्ट जो साइंस का ले लेते हैं, सो इट विल इंक्रीज योर अवेयरनेस। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो नॉलेज है ना वो कभी वेस्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। मैं एक दफ़ा किताब पढ़ रहा था, तो सेल्स से रिलेटेड एक बुक थी, बड़ी अच्छी बुक थी। तो उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा कि वो बेसिकली एक सोप मैन्युफैक्चरर थे, वो सोप बनाते थे, बहुत मशहूर ब्रांड है, नाम नहीं ले सकते उसका। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, हम उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूरी डिटेल पर डिस्क्रिप्शन देते हैं। तकरीबन कोई 100 आवर्स की उनको जो है वर्कशॉप कराते हैं कि हमारा जो सोप बनता है इस इंग्रेडिएंट से बनता है, हमारे सोप में ये कलर्स होते हैं, ये क्वालिटीज़ होती हैं। कंपैरिजन कराते हैं बाकी मार्केट में जो दूसरे सोप्स अवेलेबल हैं, अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि हम 200 साल पुरानी कंपनी है, हम ये बताते हैं कि हम कौन कौन से मुल्कों में। तो उनसे सवाल ये पूछा गया है, तो आपका जब सेल्स पर्सन सोप बेचने जाता है तो ये क्या पूरी स्टोरी सुनाता है जो कस्टमर को? कहता है नहीं सुनाता। लेकिन जब वो कस्टमर को डील कर रहा होता है ना, तो 100% कॉन्फिडेंट होता है कि ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है। तो सिमिलरली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो अगर आपने सिर्फ अकाउंट्स पढ़ी हुई है, आपने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी हुई है, आपने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको एज नहीं मिलेगी, उस बंदे को एज मिलेगी जिसने आपकी तरह अकाउंट्स भी पढ़ा हुआ है, जिसने आपकी तरह बायो पढ़ी हुई है, जिसने आपकी तरह बिजनेस स्टडीज पढ़ी हुई है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है फिजिक्स की, उसको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, उसको मैथमेटिक्स पता है, उसको पता है कि जो है वो डिफरेंट एवरेजेस कैसे आते हैं, उसको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको पता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसके अलावा एक बड़ी जो मिसकॉन्सेप्शन है वो खासतौर पे स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स की है। फॉर एग्जाम्पल जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये फेसबुक पे बड़ा ट्रेंड चलता है, पता है ना, हर कोई आजकल जो है फिलोसफर बना हुआ है सोशल मीडिया पे कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई गई थी तो वो मेरे कब काम आएगी ज़िंदगी में, या मुझे जो है वो मेरे सर ने जो है वो ग्राफ बनाना सिखाया था, ये तो मेरे ज़िंदगी कभी काम नहीं आया। भाई इसने काम नहीं आया क्योंकि आपने जो एक वाजिब सी तालीम, आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और अब एक जगह पर बैठ के कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गए, या आप एक जगह बैठ के जो वो डेटा डेटा साइंटिस्ट बन गए, या आप एक जगह बैठ के जो सिंपली एक सिंपल मैनेजर बन गए। हम तो फिजिक्स ही सोच के पढ़ा रहे थे ना कि हम फ्यूचर के इलॉन मस्क को पढ़ा रहे हैं, या तो हम फ्यूचर के नासा के साइंटिस्ट को पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा टारगेट तो ये था ना। अब हम 100 बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उनमें से कोई एक इलॉन मस्क निकलेगा ना, उनमें से कोई एक आइंस्टाइन निकलेगा ना। लेकिन अगर हम ये कहेंगे नहीं 99 लोग तो इलॉन मस्क नहीं बनेंगे, तो हम क्या पढ़ाना छोड़ दें। तो लिहाजा हमारा तो ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि हमारा उनसे जो बच्चा फिजिक्स पढ़ता है वो आगे तक फिजिक्स पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, वो नासा में काम करे, वो स्पेस एक्स में काम करे, वो गूगल में काम करे। तो हम तो इसी टारगेट से पढ़ाते हैं। अब अगर आप बीच में जर्नी को छोड़ देते हो तो इट्स ऑल राइट, एवरीबडी डजंट गेट टू द डेस्टिनेशन। आप बीच में ट्रेन से उतर जाते हो, इट्स ऑल राइट। लेकिन ट्रेन तो हम यही सोच के चलाते हैं ना कि ट्रेन इस्लामाबाद जाएगी। अब आप बीच में अगर लाहौर में उतर गए तो इट्स योर पर्सनल मैटर ना। अब ब्लेम थोड़ी कर सकते हो कि ट्रेन इस्लामाबाद तक क्यों चला रहे हो, भाई आप उतर गए ना। अगर एक पैसेंजर को भी इस्लामाबाद जाना है तो ट्रेन तो इस्लामाबाद तक चलेगी ना। अब आप अगर चीचावतनी पे उतर गए कि चलो मेरे अब्बा की ज़मीन है, मैं यहाँ पर जो है खेती बाड़ी करूँगा, तो भाई करें यार, मोस्ट वेलकम करें, किसने मना किया। लेकिन जो इस्लामाबाद जाना चाहता है उसको तो जाने देना। तो हमें तो उसके लिए पढ़ाना है ना, हम क्लास में वो कर देंगे, गिव अप कर देंगे। That is a wonderful perspective to look at it. And I'm sure अब जितने भी लोग ये सोचते होंगे उनका ये misconception तो clear होगा। बिल्कुल, ये चीज़ें ज़रूरी है ना। मिसाल तौर पर आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं बैठ के, आप जिस फेसबुक पे बैठकर मैथमेटिक्स की बुराई कर रहे होते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ाई थी, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ाई थी। भाई ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए तो फेसबुक बनी है।
ये फेसबुक पे जो एल्गोरिथम चल रहे हैं, जो पूरी प्रोग्रामिंग हो रही है, जो पूरा ये आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये किसी ने कैलकुलस पढ़ी होगी, किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, तो उसने बनाया है ना ये, आप जैसे लोगों के लिए, ताकि आप बैठ के इसको क्रिटिसाइज़ कर सकें कि ये क्यों पढ़ाया जाता है। एनीवेज़ मैं थोड़ा रूड हो गया शायद। No, it's completely all right. And coming towards my last question, जो आपने अभी mention भी किया, so where do you see yourself when you're 70 years old? What do you see yourself doing? मेरे ख्याल में आई मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग Hmm. व्हिच आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 20 प्लस इयर्स। Hmm. हो सकता है कि इसका मोड थोड़ा चेंज हो जाए कि मैं कुछ मैनेजमेंट रोल में आ जाऊं या कंसल्टेंसी रोल में आ जाऊं, कुछ और काम कर लूं, क्योंकि ज़ाहिर है एज के साथ अभी जो मेरा काम है बहुत एनर्जी डिमांड करता है। हम 7:45 पे पहले सुबह पहली क्लास होती है, 7:45 की क्लास में आके खड़े होते हैं, शाम तक हम खड़े हुए पढ़ा रहे होते हैं। तो अभी तो एज है, अभी जिस्म में जान है, तो ये काम चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर है ग्रेजुअली जैसे यू गेट ओल्डर तो आपका नेचर ऑफ वर्क चेंज होता रहता है, तो शायद नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन बेसिकली काम तो यही रहेगा, और क्या करेंगे हम। और फिर मजा भी आता है तो फिर ऑफ क्यों कोर्स, ना बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल। यकीन करेंगे जब अगस्त में रिजल्ट आता है और जब हमें पता चलता है कि आपके 20 ए स्टार आए हैं या आपके 40 ए आए हैं या आपके इतने स्टूडेंट ने डिस्टिंक्शन ली है, तो ये समझ सारे पैसे वसूल हो जाते हैं इस वक्त। ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। Well, we wish you all the best for your future, and I hope you continue to do whatever you're passionate for when you're 70 or even 80. And may your passion remains intact, and may you achieve all your goals, inshallah. आमीन, थैंक यू, Thank you so much for your time. यू आर वेलकम। All right, guys, that is all for today. I will catch you all in the next episode. Till then, stay tuned.